is say 1 lakh rupees, right? So I go and I have given the tax rate, my tax code or tax rate, right? I've given 10%, right? So what will be the WST amount? This will be, this is what we have learned so far, isn't it? Surinder, this is what we have learned so far, right? Good. Now, what happened? There is another concept called as, say, for example, the business is saying, okay, Chandrasekhar, you are able to catch it, right? Say the business is saying that I have an base value up to 1 lakh rupees, right? But I'm not going to charge 10% is completely on 1 lakh rupees. What I'm going to do is that base value 1 up to 20,000 rupees, right? My tax rate will be say 5%. Okay. Then my base value 2 up to remaining 30,000 rupees, right? It will be 10%. The rest, whatever is there, rest amount, right? It will be say 15%. Which means ऊपर इसका रेस्ट मतलब क्या होता है 1 lakh minus this plus this. Chandrasekhar, you are able to understand? So instead of 10,000, Okay. this was my base. I mean the flat calculation rate, right? This is a flat rate, flat calculation. This is what I have 10,000. But if I do like this, how much tax will come? 1,000, 3,000, 7,500. Yeah. 11,500. Can you see this? Sometimes business may take this kind of decision also. This is called as WST calculation basis tax rules, or means multiple taxes on one invoices basis their base value. Okay. Santoshji, you're applying So base to I'm just splitting it. This 1 lakh we have, right? Depends. Yeah. Yeah. So here we have base value of 1 lakh. I have taken the flat rate of 10%, right? 10%. Okay. So I've got 10,000. So what the business is saying that no, don't charge it on to 1 lakh rupees. Split this amount. Okay. 1 lakh rupee, split it. First 20,000, it will be 5%. Next 30,000, it will be 10%. Remaining whatever is left out, Yeah. it will be 15%. 15%. Yeah. They can further divide also. Yeah. और भी divide कर सकते, they can further divide also. They'll say that remaining 20,000, it will be 15%. The remaining amount, it will be 5%. So like that, they can divide also. Okay. So let's see in the SAP how to configure it. Okay. I think Sagar has responded something. But he responded, yes, sir. Okay. So Punit sir is not joining today? He will not be able to join. I think he's traveling somewhere. I don't know, but he mentioned that he will not be join today. Okay, fine. I can respond. Sagar have joined. Hi, Sagar. Sagar, can you hear us? Good morning, sir. Good morning, sir. You can hear us? Good that you have joined. It's a good topic. Good that you have joined at the right time. Can you see my screen, Sagar? Sagar, can you see my screen? You are on mute. Hello, Sagar. Chandrasekhar, Surendra, am I audible? Yes, Guruji. We're audible. Okay. Sagar, can you please come? Please,
So we have covered this. We'll cover this again. Sagar, you can see my screen. Please confirm, Sagar. Yes. Okay, good. So Sagar, we're talking today that WST calculation basis the tax rule, right? Okay. What does it mean? I'll quickly cover. What does it mean is that as of now, what have we learned? We learned the base or flat rate kind of calculation, right? For example, my base value of the invoice is 1 lakh. Okay. The tax code or the tax rate that we have created is 10, we have given is 10%. Okay. So what is my WST amount is coming? 10,000, isn't it? That is the base, it's a flat rate. This is what we have learned so far, right? Sometimes what happens is that the business tells that, okay, you don't do the WST calculation on the base value directly, straight calculation, divide the base value. Means if my base value is 1 lakh rupees, base value is 1 lakh rupees, right? Divide it into three sections. Up to 20,000 amount, you charge 5%. Next 30,000 amount, you charge 10%. Whatever is left out from 1 lakh, charge it 15%. Right, Sagar? Yes, I'm right. just dividing it. This Okay. will happen in the business also. Instead of flat Yes. 10%, I can divide it to 5, 10, and 15, or it can go further as well. But for example, I'm taking 3 only, right? So here it was Okay. flat is 10% is 10,000, but here if you do 5%, it will be 5% on this, then 10% on 30, then 7,550. So total is coming how much? 11,500. This is called as a tax calculation, WST calculation basis the tax rules or multiple taxes on the base amounts. Okay. This is what we have spoken so far. Now let us understand quickly how to do the configuration in SAP. Okay, so I'll go. संतोष जी एक कंफ्यूजन है मेरा. फॉर एन एग्जांपल हमारा 1 Yes, sir. लाख. एक मिनट, कैन यू प्लीज शो मी द स्क्रीन? सेम एक्सेल स्क्रीन. Yes, please. Yeah, I am in the Excel. आई एम नॉट एबल टू clearly visible the screen. Excel screen. Yeah. हाँ मैंने Excel Because में हूँ, so I think कुछ lag you है. have you have 1 lakh rupees, which is a base value. ठीक है, you divided into 3 parts, 20,000, Correct. 30,000, 50,000. Okay, it can be Correct. anything. मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 45 भी, कुछ भी हो सकता है. उसकी आपने फिर कुछ भी हो परसेंटेज सकता है. कैलकुलेट कर ली, कर ली. ठीक है, ये 5, ये बराबर. इसकी कैलकुलेशन है ना, कि मतलब 1 लाख से ये 20,000 कितना आएगा, ये 30,000 कितना होगा और 50,000 कितना होगा. देन ये जो ये वाली वैल्यू है, ये कैसे निकली इधर वाली? ये वाला हाँ, ये 10, ये 1,000, 3,000, 75,000. ये निकला इससे 20,000 से 5%, राइट? दिस अच्छा, में बट मैंने WST अमाउंट. ओके. बट ये कुछ भी हो सकता, मतलब इसकी कोई वैल्यू रख दी और उसकी परसेंटेज निकाल दी. हाँ मैंने बिजनेस बोलता है कि आप इसको इसको डिवाइड कर लो. ये जो 1 लाख है ना, इसको फ्लैट आप यहाँ पे जो चार्ज कर रहे थे ना, ये जो 10% चार्ज कर रहे थे, उसको ऐसे चार्ज मत ओके करो. ओके ओके अब मुझे ओके क्या ओके. चाहिए, मैं ये 1 लाख में डिवाइड करूंगा. इट्स अ बिजनेस डिसीजन, राइट? वो ठीक है बोलता है मैं ठीक है. 1 और लाख डायरेक्ट में 10% चार्ज कर. ओके, फिर उसकी परसेंटेज जो आपने डिवाइड किया, फिर आपने उसकी अलग से परसेंटेज निकाली कि कितना मेरा 5%, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 10%, और इसका कितना होगा. ठीक है. देन करेक्ट. ये हमने डिवाइड करा क्यों है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई वी डिवाइड द? देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस का ये डिसीजन होता है. हम्म बिजनेस बोलता है कि मैं बेस्ट रेट में नहीं लूंगा, मैं उसको डिवाइड करके लूंगा. ठीक है, आप समझ रहे हो? क्योंकि ये भी होता है, समझ गया. देखो ये भी कर सकता है कि 5%. दिस इज अगेन से 5%. कैन यू सी दैट द सेम टैक्स रेट आई एम यस. टेकिंग 10 lakh. I mean the business is saying that okay, to why to charge more to the vendor, or why to deduct the more tax from the vendor. Okay, ओके let me deduct it. If I ओके. did a flat, it is come around पुनीत सर 10%. ज्वाइनिंग नॉट, संतोष But जी? if I did not, पुनीत सर ज्वाइन no, कर he's रहे हैं not क्या? joining today. No, यार, he's ओके not joining today. So then ओके इसको ओके हम डिवाइड करते हैं 20, 30, 50 में. सो दैट वेंडर को मैं क्यों इतना ज़्यादा चार्ज करूँ, मैं उसको कम चार्ज करूंगा. ओके ये आपका बिजनेस का कॉल होता है. ओके. क्लियर? चलिए गो टू क्लियर SAP now. क्लियर. यस. Okay. So I have gone to SPRO path. Okay. Under SPRO path,
SPR Upath, go to SAP ING. Okay, before that, let me tell you something. Before that, the SAP is very slow since yesterday. Okay, so I'll go to MP60. I'll post an invoice now. Okay, it's very ये interesting topic. ये लास्ट लेक्चर वाला हमारा मिसिंग पार्ट है क्या, मतलब क्योंकि लास्ट लेक्चर में ना मतलब मैं थोड़ा कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से मेरा मिस हो गया था। ये लास्ट लेक्चर वाला ही है क्या, ये नहीं वाला नहीं नहीं पार्ट? नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाला नहीं है। ये ओके। एक्चुअली लास्ट वाला RCM हमने कवर किए थे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन ओके। GST। ये WST ओके। एक रह गया था। मैंने उस दिन ऐसे ब्राउज करते करते मुझे ये ऑप्शन मिला, राइट। ओके। मैंने ओके। इनको पुलिस सर को पूछा, सर ये हमारा अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा। वो बोले हाँ, देयर ओके। इज एन ऑप्शन इज कॉल्ड एज टैक्स रूल, सो हमने ओके। कवर नहीं किए हैं। अच्छा, दैट गुड दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, व्हाई डोंट यू टीच टू एवरीवन। बोले ठीक है सर, हम बात कर लेंगे, सबसे मैं बता दूंगा। तो आज शायद तो कहाँ ओके। जा रहे ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने वो ग्रुप में डाले, बोला ठीक है हम कवर कर लेंगे उसको। ठीक है। ठीक है, तो लेट्स ओके। पोस्ट एन इनवॉइस नाउ। ओके, सो आई एम पोस्टिंग एन इनवॉइस, प्लीज पे अटेंशन, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, tricky things. Okay, so I am giving, ठीक है। अब मैं अमाउंट डालता हूँ से 19,000। ओके, दिस इज which one should I take? Okay, okay, transport expenses. Okay, so this is, I've taken it, right? Very good, very good. Okay, good. If I go WST, withholding tax, if I go WST, I'll remove all these things. You have invoices, payment, then this one commission, this one rent, right? So I'll only take HZ as a tax code. Okay, remaining things I will remove from here. Okay, now if I go put it here and do the simulation, right? HZ, remember HZ, right? राइट। You get the 10%, or what is the percent you get here? Tax rate. Get that? 950. यस। So now I will go to SPR path. Pay attention, please. If I go to SPR path, I'll go financial accounting global settings, then my withholding tax, extended withholding tax, my calculations. Here I have the tax code. Can you see that? Withholding यस। tax code, right? So यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ defined withholding tax code, if I click on this, okay, my country is India. Okay, what is the tax code that I've selected here? It was HZ something, right? राइट। Tax code is HZ. Why it is not coming? It should be here somewhere. HZ. HZ. Okay, HZ is there, right? If I double click here, tax rate. Okay, it is already selected here. That's what is not coming. Tax formula was given. Okay, let me do one thing. We will do the tax rate calculation for the rent one, right? Because this is already tax formula. I was doing the testing, so I have applied that. Okay, I removed it. What is this? IA, right? Invoices. Very good. IA. Okay, we'll go with IA, where I've not given the tax formula. Okay, it came now. What is coming? 10% is coming, right? Can you see this, Surendra? Chandrasekhar, Sagar? 10% is यस। coming, right? यस। Now, Yes, Santosh. IA. I'll go back because the tax formula is already calculated. I wanted to show something here. IA. Can you see this one? Okay. Now I'll double click on this. Oh, I've done this as well. Okay. No. Okay, fine. IA, it was selected. IA. This is 10% is mentioned. That is why this 10% is coming. Okay.
If I mention the 10%, pay attention here. If I mention the 10% here, I click on the WC tax formula. I will save it. I will save it. मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी 10% मैंने यहाँ पे अपडेट किया। यहाँ पे पहले फॉर्मूला ये वाला टिक नहीं था, फॉर्मूला नहीं था, ठीक है, ओनली परसेंटेज यहाँ पे दिया गया था, इसके वजह से ये आ रहा था, राइट। मैं अगर टैक्स फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी रेट में दूंगा, मैं आई सेव दिस। ओके, नाउ लेट मी गो बैक, लेट मी एग्जैक्टली डू द सेम थिंग। ओके, I will, let me see if it will pick or not, else we'll have to go back. It is coming, so let me repost the journal. FB60, FB60, supplier 5. I'll put that 19,000 exactly same. What is my company code? SKPI is there already. Okay, this is my this. Okay, continue to press enter. Okay, click on WST. Okay, I'll remove everything, right? What I should keep? I should keep only IA, right? Remaining I'll remove. Why I will remove? Because this is for payment, I don't need it. This is a payment, I don't need it. So brokerage, we are not doing the testing, we're doing the testing with the IA. Okay. So earlier क्या हो रहा था? 10% it was coming, right? Can you see? Is it coming now? Surinder, Chandrasekhar, Sagar. It is not coming now, right? It's not coming now. Why? Because in the tax formula, I have given the instruction to SAP that boss, this tax code will go with the tax formula. What is tax formula? Tax formula is nothing but your multiple tax rate on the base value. The time I select this rate will not come. Sagar, Chandrasekhar, can you get that? Yeah. ये यहाँ पे नहीं आएगा, इट विल नॉट कम हियर। सो अगर मैं यहाँ आई मे गिव इट, सी द टाइम आई सिलेक्ट द टैक्स फॉर्मूला, दिस बिकम नेग्लिजिबल, दिस डजंट हैव एनी वैल्यू। इसका वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सागर, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इसका वैल्यू चला गया। So the time I put the tax formula here, then I'll have to do the tax formula configuration here. Okay, let's go back to the tax formula. Let it be 10%. Nothing will come. So I'll go back. It's a tax code is IA. So once I go back, here can you see the define formulas for calculating withholding tax. Okay, go here. Good. What was the tax code? IA, right? Okay, I think we'll have to put this is what I did the testing on that day. I did the testing on that day. Okay, so I'll put a new entry here. Okay, currency, I'll give INR. Then I got tax type. What is my tax type? IA. What is my tax type for this? Financial accounting, some global settings. Okay, withholding taxes, extended withholding taxes, calculations. Then you have tax code. Okay, define withholding tax code. Okay, IA, right? So come here, find that IA. So tax type is I1. I1. Okay.
Good. Tax code IA. Okay, this is the one. Then valid from. This fella you don't have to give anything. The time you give this, it will not work. The tax formula will not work. So give the valid from here. It is say for say 1st October 23, right? Because what is this required? Is the WST region. That means you have selected a region, specific region. This will work for that particular region only. लेकिन हम क्या दे रहे हैं? It is only in India, right? हम इंडिया के अंदर दे रहे हैं, तो इसीलिए if the time you select this particular area, it will be applicable only that particular region. It may be Bangalore, it may be Pune, it may be the specific region as per the section code, right? But I'm giving India, so I don't have to give anything here. Okay, so I'll save it. All right, now select this. I'll go to the formula now. Double click on this. Great. Okay, here the new entry. Now pay attention here, please. What is my in Excel? What is the base amount we need to do this configuration, right? My first base amount is 20,000. I gave 20,000. What is my tax rate? I'm saying 5%. Give my 5%. Okay. Then next is 30,000. What does it mean 30,000? So I'll give it here 50,000. Reduce minus from here 20,000. This will become 30,000. This is how the SAP understand this language. I cannot give 30,000 directly here. This is how SAP configuration has happened. This is 50. You need to give 50,000 here, minus 20,000. Reduce a base amount, minus 50,000. What is the net amount here? This become a 30,000. Right, Sagar? Chandrasekhar? Yes, 50 yes. minus 20. It become 30. Okay. I'll give a 5% here. Okay. 5% here. Sagar, you are with me so far? 30,000 here. Now the rest amount. Sagar, please respond. Rest amount. So SAP says the rest amount का nothing but जो configuration होता है इसको होता है 99,999 you can put it, so that will contribute as a base rest amount. Okay. So from here, how much you need to minus? You need minus 50,000. 50,000 minus 50,000. First 20,000 5%. 50 to 20 minus 30,000 is 5%. Remaining whatever is left out minus 50,000 because it's 30 and 20. 50,000. Sagar, can you understand this? 50 I'm minusing, so remaining will be 5%. सागर कुछ बोलो यार, if you're there. चलो चलो सर, मैं सुन रहा हूँ, मैं सही सुन रहा हूँ। अरे सागर भी बोला था ना, तो शायद समझ में नहीं आएगा उसको भी। ये बताना, ये जो लास्ट वाले कॉलम में फिर क्या डलेगा अगर हमें डिक्रीज रिड्यूस बेस अमाउंट करना हो? जैसे 50,000 जो फोर्थ कॉलम में है, हाँ। जैसे 20 आपने यहाँ पे 20,000 डाला रिड्यूस बेस अमाउंट में, ठीक है? उसमें 50 में से 20 माइनस कर दे तो 30 पे लगाएगा नेक्स्ट रेट उस टीडीएस का, ठीक है? बराबर तो बराबर। अगर मैं इसके अंदर ये फिफ्थ कॉलम में कुछ अमाउंट डालता हूँ तो वो 20,000 में से कम करेगा ना फिर? 20,000 कम करेगा। तो फिर वो 10,000 पे लगाएगा, 20,000 पे लगाएगा मेरा 5%। करेक्ट। डिक्रीज रिड्यूस अमाउंट मतलब वो तो ये डिक्रीज जो रिड्यूस बेस अमाउंट लगाएगा ये क्यूमुलेटिव पे चलेगा या फिर 20,000 किस पे चलेगा? मुझे ये समझ में नहीं आया फिफ्थ कॉलम कोई वाला। बात नहीं। ये देखो, ये 50,000 20,000 राइट, ये 20,000 हम क्या बता रहे हैं? ऐसे 30,000 बच गया। 30,000 हाँ। ये बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे अगर मैं 10,000 माइनस करता हूँ राइट, हाँ, ये 10 हाँ। क्या करेगा? ये 20,000 10 माइनस कर देगा, नेट क्या होगा 10, 50 माइनस 10। अच्छा, तो फिर वो 20 ही रह जाएगा, 40 हो जाएगा ना फिर? नहीं, 40 हो जाएगा ना फिर तो? 40 हो जाएगा। हाँ, मतलब फिर 40 पे लगाएगा 30 की जगह। करेक्ट। हाँ, सही है। ये ऐसे मतलब ऐसे ही इसको स्ट्रेट बना सकते थे, लेकिन यार ये ऐसे ही बना गया तो क्या बताएं। दिस इज हाउ द एसएपी इज कॉन्फ़िगर्ड। नहीं, अगर एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी करो और एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी भी करना है, एक कोड ऐसी बनाना है जिसके अंदर डिक्रीज भी करेंगे, पता तो चले ना क्या चल रहा है। दिखते हैं, मैंने उसके ऊपर तो ट्राई तो नहीं किया, उसको करेंगे ना, देखें। इससे करते हैं ना, पहले इसको हाँ करो फिर इसको करते हैं। हाँ, परफेक्ट, इसको करते हैं। तो ये हो गया, सेव करूं। क्या हाँ, क्या हाँ, किया करो करो। हमने? हाँ, 30। इनको बता दो, चंद्रशेखर गायब हो गए थे, इनको एक बार ही बता दो। चंद्रशेखर, आर यू देयर? Yes, सागर। yes, due to some internet issue, I disconnected again. हाँ, एक बार ही बता दो इनसे। Yeah. ओके, सो हम बता रहे हैं कि 20,000 इज द बेस्ट अमाउंट। इसके ऊपर मैंने 5%, 5% दिस एग्जैक्टली व्हाट वी पुट इन द एक्सेल फाइल।
I am putting the same thing here. Correct. Second base amount 50,000 minus 20,000 because this is how SFP configuration is done. Chandrasekhar, Mhm. see, I can easily put a 30,000 here, right? I can easily Correct. put 30,000 here, but this is how the SAP configuration has been done. First you put a 50,000, then you minus what are the amount you want to minus from here, so that your net amount will come 30,000. 50 minus 20 is coming 30. Correct. The Yeah. 30, The the system will 30, calculate automatically. Okay. yes, 5%. Remaining whatever is left out, minus 50,000. Because ये 20 plus this is 30, 50,000. So minus 50,000 will be your 5%. 50,000 तो रह गया ना बस। हाँ, remaining whatever is left out, हाँ बट अभी whatever is left out. Okay, मैं हटाओ ना, उसको अभी सेव इसको हटा, इसको फिर 50,000 को डाला आपने। अच्छा अच्छा ठीक है माइनस करो ना ठीक है इसका, ठीक माइनस करो ठीक ना है इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गए? हाँ समझ गया। चलो एक्सेप्ट, चलो भाई, ये IA के ऊपर है, राइट? चलो हम्म, देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे तो आया नहीं था। अब जाते हैं एक एंट्री पोस्ट करते हैं हम्म। सप्लायर में, चलो इनवेज में, चलो मारो क्या है, 1 लाख डालने का ना हमें, 1 लाख करो, ठीक है, ये वाला एंट्री करो, ये वाला करो, मारो एंटर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ओके। WST में जाओ, मारो एंटर, ओके, इसको डिलीट करता हूँ मैं, I'll delete this, I'll delete this. This is my IAS, my tax code. Very good. Now I'll do the simulation. I'll enter. I'll enter. What has come? कम तो आ रहा है, 5,000 आ रहा है, तो ज्यादा आना चाहिए था। Calculating 5%, हमने right? सब जगह पाँच Base value. Okay. हाँ ये वैल्यू 5% गलत आ दिया, गई ना। ठीक है ठीक है। हमने सब 5% डाल दिया ना यहाँ पे। हाँ ठीक है समझ गया सर, 2500 होगा ना लास्ट वाले में, ठीक है। अरे तो हो गया। हम्म। क्वेश्चन सागर बताओ भाई, क्वेश्चन सवाल सवाल कुछ अरे सर चंद्रशेखर। वो मोक दर्शक है, वो मोक दर्शक है, उससे मत पूछो। ओके, चंद्रशेखर सवाल, कोई कोई क्वेश्चन? अब एक सर वो सिनेरियो चलाओ, उसके बाद तो पता नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग सिनेरियो, राइट? हाँ अब ये हो गया। अब देखते हैं कि लेट्स सी दैट कि ये 30,000, ठीक है, अभी ये 20 वहाँ पे रहेगा, दिस 30 से मैं फिर 10 यहाँ पे माइनस करूँगा, तो ठीक है। 40 हो जाए। हाँ, तो मैं हम यहाँ पे लेके जाएंगे, दूसरा सिनेरियो हो जाएगा, रन करें, मैं उसको रन नहीं किया अभी तक, लेट्स सी दैट, ओके। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, ओके। ये मेरा बेस अमाउंट है 20, ये मेरा 30, बाकी इसमें से मैं 10 माइनस करूँगा, इसमें से फिर मैं से 40 माइनस करूँगा, राइट? ओके, हाउ इट विल हैपन, दिस इज माई 50 माइनस माइनस 20, ओके, दिस इज माई नेट, इज हाउ द कैलकुलेशन है, जस्ट पुटिंग इट फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग। रिमेनिंग मेरे पास कितना रहा, इतना रहा, 30 रहा, ओके। ये 30 से मैं माइनस कितना करूँगा, सर लास्ट वाले में 50 बचेगा ना, 30 क्यों बचेगा? उसमें तो नहीं 50 बचेगा ना। हाँ हाँ, सर आप, हाँ इसमें 50 बचेगा ना, हाँ। 50 बचेगा। ये जो M3 है इसको मैं O3 करना चाहिए, नहीं नहीं, आप एक्सेल पे मत चलो, अभी एसएपी के हिसाब से चलो। यहाँ पे चलो, नो 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 नो, इसमें ये इसका ठीक था ना, ये ठीक था 40 ये। माइनस, हाँ ठीक है, ये माइनस माइनस 30,000। हाँ ये बचेगा आपका 50,000। नहीं है, गलत हो गया, नहीं नहीं, गलत किया अभी आपने, ये क्या कर ये दिया। बचेगा, ठीक है, हाँ ये ठीक ये बचेगा, राइट? है, हाँ ये बचेगा आपका। चलो हम जाते हैं SAP में, लेट्स सी, दिस इज वन सिनेरियो, विल गो बैक,
ओके, मैं हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो नए कोड बना लो ना, इसको रहने दो। नया टैक्स कोड बनाए। हाँ, एक नए बना लो ना, उसी पर करेंगे टेस्टिंग, इसको मत छोड़ो। फिर नया टैक्स कोड, अच्छा हाँ, तो एक नए ठीक। टेक्स्ट कोड बना। ये वाला लेते हैं। आई भी बना लो। आई भी बना हुआ है क्या? बना हुआ, I2 बना लो, I3 बना लो, एक मिनट, I3 करके IC बना लो। ये निकाल दो। अच्छा, इसको इसको करते हैं, ये जो HZ है हम्म, इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं, चलो। हाँ, यहाँ कर लो। सो हमारा क्या था, ये था 5%। ओके, हम सब 5% है। ठीक है भाई, सब 5% है। ठीक है, ये भी अपना 5% है। ठीक है, हम्म, अब हम बता रहे हैं कि ये जो 20%, 5% है, ये मेरा 30 डिक्रीज्ड रिड्यूस्ड बेस अमाउंट। ओके, 22 से आई एम सेइंग 10%, 10,000। ओके, सो नेट कितना रिड्यूस होगा? इसमें टोटल 50, आएगा 40,000 रुपये लगेगा। 50, हाँ ठीक है, ये 20 हो गया, ये मेरा 30, 20 का 40,000। तो फोर्टी नेस यहाँ से मेरा 40,000 माइनस होगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अब चला करें, कर देखो, चलेगा। हाँ, चला था, देखो पता चला। ये किसका है? HZ का है, राइट? हाँ, ओके, चलो चलते हैं भाई HZ पे, FB60 में चलाते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि नहीं? ओके, HZ है, रिमूव दिस, रिमूव दिस, रिमूव दिस, एंड HZ। ठीक है, करो सिमुलेट, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। फैंटास्टिक, 5,500। हाँ, तो 500 रुपये बढ़ गया ना सर। 500 बढ़ गया, जो 10,000 पाँच रुपये माइनस किए थे। हाँ, तो 500 रुपये बढ़ गया ना उससे। पहले हम 30 ये पे लगा रहे थे तो 2500 आ रहा था, अब 40 पे लगाएंगे तो 3,000 रुपये हो गया यहाँ पे। करेक्ट, 500 रुपये बढ़ गया, तो ये 500 रुपये इसके लिए बढ़ गया। चलिए, बढ़ गया ना 10,000 के लिए। या, दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज बिन डन। चंद्रशेखर फिर बता दे। चंद्रशेखर फिर क्या है? फिर गायब हो गए। आ सागर गए भाई फिर। साहब, सागर फिर भाई दोबारा साहब, बता। सागर भाई साहब, क्लियर? क्लियर तो बताइए। है। एक बार आप दोबारा से सेम स्टार्टिंग जब से, मतलब पूरा का पूरा, वो बीच में थोड़ा, बता दो मतलब सर, बता पूरा। दो, मेरे को तो क्लियर हो ही गया, मेरे को तो पता था ऐसे चलेगा। इसलिए मैंने कहा चलो एक चेंज करके देखते हैं, उसको भी यूज कर लेते हैं। हाँ, सही बात है। बोलो सागर, और क्या डाउट है? बोलो, ये तो सिंपल है, सर, एक बारी बताओ। और रन कर दो इनके लिए, जो लास्ट टॉपिक था ना, चंद्रशेखर जी आ गए। ये हम्म, एक बारी और बता दो इनको कैसे चलता है। ठीक है। बताओ, चंद्रशेखर, सागर, कहाँ पे डाउट है? ये एक्सेल में कहाँ पे डाउट है, बताओ। एक्सेल में तो कोई डाउट नहीं है, यही मैं एससीबी में एक बार रन करके दिखा। एक्सेल समझ गया तो फिर इसमें तो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? बेस अमाउंट में कोई प्रॉब्लम है? सागर, चंद्रशेखर, नहीं। Yeah, that I got it. Tosh. इसमें गुड, वेरी गुड। सो इसमें डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दिस? अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे बताता हूँ। सी, हम क्या किए, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जाते हैं, आई ए में जाते हैं, राइट? ये आई ए में जब हम गए, हमने क्या किए, यहाँ पे हम गए, जाके ये वाला सेक्शन हमने किए वहाँ पे। ठीक है, ये सेटअप। मैं क्या ऐसे को क्या बोलता हूँ सागर, व्हाट आई एम डूइंग इज टेलिंग इज कि अप टू, सी व्हाट इज माई टोटल अमाउंट, आई हैव 1 लाख, राइट? 1 लाख Correct. का 20,000 आई एम टेलिंग, 20,000 टेलिंग टू SAP, 20 अप टू 20,000 यू कैलकुलेट बेसिस 5% ओनली। सागर, Mm-hmm. क्लियर? Yeah. यस। नेक्स्ट, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा कितना बेस अमाउंट होना चाहिए? 30,000 होना चाहिए। ठीक है, Second base. Yeah. तो SAP, थोड़ा सा ऐसे समझता है
इसको ऐसे समझ लेते हैं। सीधा हम क्या कर सकते थे, सीधा मैं यहाँ पे 30 डाल सकता था, सागर चंद्रशेखर, सीधा यहाँ पे 30 डाल Yeah. सकता था, राइट? Mm-hmm. I could have put 30 here straight forward. लेकिन हाउ SAP इज अंडरस्टैंडिंग इज दैट पहले तुम यहाँ पे बेस अमाउंट डालो, इसके बाद इसको माइनस करो, तो फिर 20 जाने के बाद मुझे 30 चाहिए। 30 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने 50 डाल दिया, यहाँ मैंने 20 डाल दिया, 50 डाल दिया, मैंने 20 डाल दिया। नेट कितना आ गया, व्हाट इज माई नेट अमाउंट इज कमिंग, 30 इज कमिंग, 30 इज 30, इज 30 अप टू 30 के ऊपर 5%, 30 के ऊपर 5%, रेस्ट वट एवर इज लेफ्ट आउट विल बी 5%। रेस्ट वट एवर इज लेफ्ट आउट मतलब क्या होता है, 999999 वट एवर इज लेफ्ट आउट, राइट? तो Correct. उसके ऊपर 5%, एंड ऑन वट एवर इज लेफ्ट आउट उसमें से माइनस कितना करना है मुझे, ये 20,000 प्लस ये 30,000, इज नॉट 50, इज 30,000, बिकॉज 50 से 20,000 माइनस कर रहे हैं 30,000, तो 20 प्लस 30 50 में रिमेनिंग अमाउंट से माइनस कर रहा हूँ, जो हाँ. रह गया वो 5% चार्ज करूंगा। बट इसमें ये 99999.99 ये ऐसे भी 30,000 या कोई पर्टिकुलर फिगर में क्यों नहीं निकालता, ये इस उसमें क्यों निकालता? ये देखो रिमेनिंग जो हो गया, रिमेनिंग जो रेस्ट जितना भी है, आप ये डालना नहीं चाहते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है फाइन। आप बोलना चाहते हो ये 20,000, और एक सिनेरियो रन करते हैं, ये 20,000 ये 30,000, रिमेनिंग मेरे पास जितना हो गया 50,000 पे डालना है, ठीक है वो मैं कर दूंगा। लेकिन ये हो गया कितना, 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। अगर मेरा इनवॉइस वैल्यू 1,10,000 हो जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो एक्सीड कर रही है एक्सेप्ट कर बेस वैल्यू लिया, से। एग्जैक्टली। हाँ, सिस्टम बोलेगा कि भाई 1 लाख तक आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हो, बाकी 10,000 मैं क्या करूंगा। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि भाई तुम जितना करना करो, बाद में जितना जितना रह गया वट एवर इज लेफ्ट आउट, 10,000 रहा, 5,000 रहा, 20,000, वट एवर इज लेफ्ट आउट, राइट? तो उसके ऊपर जो ओके, माइनस को माइनस करो, जो हो चुका है, जो मेन्यू रह गया उसका टैक्स रेट बताओ, ओके, ठीक है? ठीक है। गुड। और बताओ, और कौन सा टॉपिक डिस्कशन करना चाहते हैं, वैलिडेशन, सब्स्टिट्यूशन, यू वांट टू डिस्कस? कल वो लास्ट वाला एक बार कर देते जो कल लास्ट टाइम में पुनीत सर ने समझाया था ना, वो छूट गया था मेरा थोड़ा सा, और उसकी RCM वाला वीडियो। बोल रहे हो? हाँ हाँ, उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं है यार मेरे पास, उसका भी RCM में भी आज थोड़ा सा मैं उसको बैठूंगा, रिसर्च करूंगा। RCM, सुरेंद्र आपको, आप क्लियर हो क्या RCM के ऊपर? Santosh, can you please, do the RCM today if you have already know that? Yeah, we can do that, but again, I need to revise that. I mean, I Okay, have okay. not worked on it, but I have to work on it Yeah, today. got it, got it. Yeah. Fine then. Maybe what we can do is that if Sharon is not joining tomorrow, if in case he's not joining, we can discuss tomorrow. So today I'll do some groundwork, practice, etc., etc. Then I can come back tomorrow because I have not worked on that after our last meeting. Okay. Hmm. Surendra, tell us one thing. When this RCM instance happens, right? Will these RCM amounts, tax amounts, eligible for the tax credit? Can I claim it क्या सर, or no? दोबारा बोलो, दोबारा दोबारा। मतलब जो RCM का जो अमाउंट हम ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन हाँ, एग्जाम्पल, ओके। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, नॉर्मल WST सिनेरियो क्या होता है, जस्ट टेक इन एंट्री, राइट? आई एम गेटिंग द, आई एम बाइंग समथिंग, माई एक्सपेंसेस इज डेबिट, which is say 30,000. Okay. My vendor is credit, which is say 20, this is my 10%, 3,000, 27,000. Remaining my WST, right? Credit, Yep. okay, Yes. which I'm going to pay to the government. This is my 3,000, 10%. This is what the normal scenario. No, this is GST. We're talking about the GST here. Why WST? सर TDS सिनेरियो ना सर। This is GST. ओके। Okay. I'm buying something, input tax, right? So 30,000. WHT, पहले WHT को रिमूव करो ना यार।
ये आपका परचेस हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये मेरा एक तरह का परचेज हो गया। हाँ, तो 3,000 का इनपुट हो गया आपका, इसके आगे इनपुट जीएसटी लिख लो, कंफ्यूजन नहीं हो। नो नो होल्ड ऑन, मैं जीएसटी मेरा जो ये इनपुट जीएसटी है राइट, ये हाँ, मेरा तो फिर यहाँ पे ये जो वेंडर को मैं दूंगा 30, यहाँ पे एक्सपेंसेस मेरा 3,000, ओके। माई से सी जीएसटी और इनपुट जीएसटी, पुट इनपुट जीएसटी, ओके। दिस ऑल्सो गो एज ए डेबिट राइट, 3,000। वेंडर को मैं दूंगा, दिस इज हाउ इट इज, 30,000। दिस इज हाउ द नॉर्मल सिनेरियो राइट, क्योंकि ये मेरा रिसीवेबल है एंड दिस व्हाट आई एम पेइंग टू द वेंडर एंड ही विल पे ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल जीएसटी में है, इनपुट जीएसटी, input GST, right? When I talk about my say आउटपुट output GST, आउटपुट तो आरसीएम तो आएगा नहीं, फिर भी एक बार नहीं, सिनेरियो ले कोई लेते। नहीं, कर लो आप, पहले नॉर्मल सिनेरियो बना दो। करेक्ट। सो कस्टमर को, कस्टमर अकाउंट डेबिट से 30,000, ओके। देन मेरा बैंक और मेरा रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट इज माई 27,000, माई आउटपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी जो कि मेरा पेएबल, एक तरीके का पेएबल है, इज माई 3,000, इसको फिगर को चेंज करो ना, तभी हमारा पेबल खड़ा हो। बराबर। हाँ, इसको 50,000 कर देता हूँ, इसको मैं इसका 10% कर देता हूँ, 5,000 ठीक है। और ये और इसको मैं कर 45,000। देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ 45,000, ठीक है। हम्म। मेरा नेट 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 जीएसटी मेरा कितना आया? नेट जीएसटी आपका आएगा 2,000 पेबल। 2,000 मेरा पेएबल है राइट। पेबल मेरा रिसीवेबल माइनस मेरा पेएबल, दिस वन नेट इज पेएबल। चंद्रशेखर, सागर, अंडरस्टूड? एक मिनट, लास्ट वाला बताना आपने क्या किया। नेट, दिस इज माई इनपुट जीएसटी, इसका मतलब ये है कि माई रिसीवेबल वट एवर आई पेड टू द वेंडर राइट, आई रिसीव, इट्स माई रिसीवेबल जीएसटी, इट्स माई करंट एसेट, एसेट साइड, इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी is my payable because I have collected money from the customers. It's not my money, but I have deducted from their payment. I have collected it from the customer. कस्टमर ने 50,000 रुपये ले चुका हूँ, पर मेरा एक्चुअल रेवेन्यू 45, रेवेन्यू 5,000 जीएसटी के लिए, ठीक है। दिस माई liability I have to pay to the government. So the net this one and this one net is a net GST. My total receivable minus total payable 2,000 is my net GST. Right, Sagar? चंद्रशेखर? Yeah. गुड, यहाँ का तो सही है। अब आता है, ये है गया हमारा नॉर्मल जीएसटी सिनारियोज, ओके। जब मैं आरसीएम के बारे में बात करूंगा, आरसीएम तो इसे रिवर्स चार्ज रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। दिस इज आरसीएम राइट। तो दिस आरसीएम सिनारियो जहाँ पे आउटपुट के लिए तो आता ही नहीं है, बिकॉज आउटपुट के लिए तो आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड राइट, आएगा ही नहीं। सो दिस विल बी ओनली इन टर्म्स ऑफ इनपुट जीएसटी। पर आरसीएम के लिए क्या होगा, चंद्रशेखर एंड सागर थोड़ा सा हम ग्लिम्स दे देते हैं इसमें। इसमें क्या है, व्हाई दिस आरसीएम इज अराइजिंग राइट, व्हेन, okay, so in this particular scenario, current asset scenario, I am paying to the vendor my tax amount, which means so far the 3,000 I'm paying to the vendor, right? 33,000. I'm pay how much will I pay to the vendor? 33,000, isn't it, Sagar? They were charging 33,000 to vendor, correct. तो 33,000 का ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप ये है, माई एक्सपेंसेस और माई 8,000. स्टॉक और माई फिक्स्ड एसेट वट एवर आई बॉट राइट, दैट इज 30,000। रिमेनिंग जीएसटी के लिए भी मैंने वेंडर को मैंने पेमेंट किया 3,000।
टोटल मेरा स्टॉक, मैंने स्टॉक उनसे खरीद किया सर इसमें मत 3000। चेंज करो, इसको मत चेंज करो, इसको मत चेंज कॉपी करो, करके पेस्ट करके नीचे ले जाओ। हाँ। ठीक है। हम्म। तो मैंने सेम एग्जांपल देते हैं, ये एक्सपेंसेस जो है और स्टॉक है वॉट एवर इज देयर, राइट सागर, चंद्रशेखर, इसके लिए मैंने क्लाइंट को, मैंने मेरे वेंडर को बता रहा हूँ 30,000 में पे कर रहा हूँ फॉर माई स्टॉक और फॉर माई एक्सपेंसेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मेरे वेंडर को पे कर रहा हूँ 3,000 रुपया एक्स्ट्रा, क्यों? टुवर्ड्स द जीएसटी। GST. टोटल वेंडर पे करूंगा 33,000। Correct. क्यों क्यों पे ये सर ये उस केस में करेंगे सर जिसमें अगर वो रजिस्टर वेंडर है तब। रजिस्टर वेंडर है तब, हाँ नॉर्मल जीएसटी के केस में। हाँ, ये भी और क्लियर जब कर वेंडर दो। को, हाँ जब मैं वेंडर क्या बोल रहा हूँ, ओके भाई, आई एम पेइंग दिस टू यू, राइट, यू टेक इट एंड यू पे टू द गवर्नमेंट फ्रॉम योर इसके साइड। आगे सर वेंडर के आगे ना रजिस्टर्ड लिख दो ताकि करेक्ट, क्लियर हो जाएगा। हाँ। ये हमारा हो गया हम्म। रजिस्टर्ड वेंडर कैटेगरी, हम्म। ठीक है। ये पूरा आपका रजिस्टर्ड वेंडर कैटेगरी में फॉल करता है। किधर गया मर्ज, किधर गया भाई, समझ गए सागर, चंद्रशेखर? रजिस्टर्ड वेंडर कैटेगरी ये फॉल करेगा अभी, ये फॉल करेगा अभी नॉन रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर नहीं है, हम्म। ठीक है। जिसकी इसको टर्नओवर 20 बोलते लाख हैं, से 50 लाख से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब कुछ हाँ क्राइटेरिया दे रखा है जीएसटी में कि अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं करा सकते जीएसटी में। तो उस केस करेक्ट, में क्या होगा कि आप जिसके साथ सेल और परचेज कर रहे हैं वो आपका जीएसटी काटेगा, बट आपको पे उतना ही करेगा जितनी आपने उससे सर्विस ली है। रेस्ट ऑफ वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा आपके भी पे। हम्म। हम्म। तो इस जगह में फिर एंट्री क्या होगा? मैं अगर करो इसको ना लेके आता हूँ सर, यहाँ इसके पे, इसमें करो होगा, कॉपी करो नीचे। करो, हाँ, इस ये केस में होगा आपका इनपुट आरसीएम, इसमें लिखो इनपुट की जगह आरसीएम जीएसटी, इनपुट हटा दो, आरसीएम इनपुट हटा दो, आरसीएम जीएसटी, और इसको 30,000 करो वेंडर को। वेंडर को 30,000 और मैंने पे नीचे कर लिखो, दिया। यहाँ पे लिखो आरसीएम जीएसटी, आउटपुट आरसीएम जीएसटी क्रेडिट 3,000, आरसीएम आउटपुट जीएसटी। आउटपुट क्यों, इट्स इनपुट नो। आउटपुट लिखो ना सर, लिखो तो सर ही बता रहा हूँ, आउटपुट जीएसटी 3,000, ओके, और ऊपर लिखो इनपुट जीएसटी। मतलब इसको आप कुछ भी बना सकते हो, आपके हिसाब से बनाना है आपको लेजर का नाम। ये आपस में हमेशा नलिफाई होंगे आपके। अच्छा बोले हो, हम्म। दिस इज माय इनपुट जीएसटी, हम्म। वेरी You गुड। mean like you're collecting and you're paying? हाँ, इस केस में हम क्या करेंगे कि जो 3,000 जो डेबिट साइड वाला आ रहा है वो हम Mm-hmm. गवर्नमेंट को पे करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ वेंडर। Vendor. Okay. यस, यस। अगर आपका आउटपुट, अब एक एक सिनेरियो सर, ऊपर वाला जो सेल वाला है ना उसको भी कॉपी कर लो, उसको भी इधर पेस्ट कर लो। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये वाला भी कॉपी करके नीचे कर लो। अच्छा, इसका क्लियर करते हैं, रुको। ये वाला बोलेगा पेबल टू वेंडर, दिस लाइन, राइट? हाँ, ओके, दिस लाइन ये पे नहीं, वेंडर को कुछ भी नहीं पे करेंगे हम इसमें। पेबल टू गवर्नमेंट, पेबल टू गवर्नमेंट, पेबल टू गवर्नमेंट। वेरी गुड। हाँ, ये वाला ये वाला सर, इसको हम खाली एक लेजर बना के रखेंगे अपने इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कि हमने आज तक आरसीएम कितना काटा है सिस्टम में। एक बात बताओ, ये तो आपका डेबिट साइड में आ गया, पेबल गवर्नमेंट कैसे हाँ होगा? मुझे सर, मुझे क्या लगता है पता है ये क्या? ना ये इनपुट और आउटपुट हटा दो, ये हम आपस में हमेशा 3,000 आपके नलिफाई होंगे जब हाँ हम बात तो समझ गया, हाँ हाँ नहीं, ये इनपुट और आउटपुट का जो डाउट है ना ये खत्म हो जाएगा आपका, इनपुट और आउटपुट दोनों हटा दो उसमें। ठीक है, हाँ बस ये भी हटा दो, इसमें से आउटपुट, ठीक ठीक है है, सर, ये हट गया। ये हमेशा आपका नलिफाई होगा 3,000। ठीक है, ये समझ गया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मुझे क्या लगता है पता है क्या, हम्म। यहाँ पे ये आएगा, ये मेरा एक्सपेंसेस में जाएगा, एक लाइन, दिस इज माई डेबिट लाइन,
एंड ये वाला जो पेबल है क्रेडिट लाइन है, दिस इज व्हाट आई नीड टू पे टू द गवर्नमेंट, बट आई कैनॉट नेट दिस अप, मैं नेटअप नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा एक्सपेंसेस में चार्ज हो जाएगा, हम्म समझ रहे हो क्या? हम्म बिकॉज दिस इज माई लॉस, राइट? लॉस नहीं है सर आपका, ये लॉस नहीं है। आप इसका इनपुट्स गवर्नमेंट से ले सकते हो अगर आपकी कोई भी सर्विस चार्ज आउटपुट जीएसटी अगर आपके पास है तो। अच्छा, आरसीएम कैटेगरी में। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो क्रेडिट साइड ये लिखवाया आपका मैंने। अगर चलो आपका लिखो। यहाँ पे 5,000 का आउटपुट अगर आप बेच रहे मतलब माल बेच रहे हो किसी को, उसमें तो आपने कस्टमर को पे कर दिया जीएसटी। बराबर, ठीक इस है पे तो लिखो। ठीक है हाँ ये सेल। अब इस केस में आपको अभी भी आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हो गवर्नमेंट से, 2,000 रुपये का पेबल खड़ा होगा बस आपका इस केस में भी। दिखते हैं, यहाँ पे डालो फिर। कस्टम 50,000 ये है, बराबर। हाँ ठीक है। इसका फिर डाउन करो, ये लिखो, ये एक आरसीएम जीएसटी रहेगा। हम्म, ठीक है, ये कस्टमर का यहाँ पे हो जाएगा 45,000। हम्म, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 45,000। और ये मेरा डेबिट के लिए क्या आ जाएगा? 5,000। हम्म। ये और ये रेवेन्यू 5,000, का ये हो जाएगा मेरा 45,000। 45,000 का ये रेवेन्यू हो और ये जाएगा मेरा 5,000। हाँ 5,000। हाँ। ठीक है, हम्म ये मेरा हो जाएगा रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। हम्म ओके, हम्म। एंड दिस इज माई, ये वाला जो है, ये ये आपका मेरा, एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू का पार्ट लगा लो है तो हाँ। दिस इज माई पी एंड एल साइड। हम्म। पी एंड एल नहीं साइड, बैलेंस शीट, हाँ ये पेएनएल का सेट होगा, वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा फिर आपका। वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। ठीक है, द सेम थिंग, दिस इज माई पी एंड एल साइड। यस। और नीचे वाला आपका होगा बैलेंस शीट का। ये हो जाएगा बैलेंस शीट का। हम्म, ठीक है, तो आप बता रहे हो ये आरसीएम कैटेगरी में, लेकिन मुझे बात बताओ, आरसीएम तो कैसे होगा? आरसीएम तो मैं, मी, दिस इज माई सेट ऑफ द बुक्स, राइट? मी, हम्म। आई एम सेलिंग टू द नहीं कस्टमर। ये वाला आपने गलत लिखा है ना, ये वाला जो राइट साइड वाला केस है, इसमें आरसीएम का नहीं होगा। इसमें नहीं खाली होगा। आपकी नॉर्मल एंट्री होगी हाँ, जो ऊपर जो वाले नॉर्मल को। एंट्री होगा। हाँ करेक्ट, हाँ हाँ। क्योंकि मैं तो रजिस्टर हूँ ऑलरेडी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपको कॉपी पेस्ट करना था बस, ये ऊपर वाला सिनेरियो नीचे। हाँ, तो ये इसमें एक एप्लीकेबल मिनट नहीं बात होगा सर। कर। अच्छा चल अपना छाते से कहते था, मैं जरा मेरी क्लास चल रही है अभी। अब आपके इस केस में सर 5,000 आउटपुट खड़ा हो गया। क्या हो गया? हाँ अब आपका 3,000 आपका इनपुट आपने वेंडर के केस में आपने गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए 3,000 खड़ा हुआ है। बराबर। तो ठीक है, और 5,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो अभी आपकी जो लायबिलिटी खड़ी होगी वो 2,000 की लायबिलिटी खड़ी होगी। नहीं, ये भी मेरा लाइबिलिटी है, सोचो अरे इसके ये तो ऊपर। लायबिलिटी है ना। तो 3,000 तो एक एक्सपेंस वाला जो पार्ट है यहाँ से एडजस्ट करवाओगे ना आपको। ये वाला बोले हो? हाँ ये वाला एडजस्ट तो कराओगे ना। किसका अगेंस्ट में एडजस्ट करूंगा मैं? सर पेबल देखो, ये आपने उल्टा लिखा है। ये आपका 3,000 ऊपर जाएगा और ये 3,000 नीचे जाएगा। ये जो 3,000 जो डेबिट वाला है ना आपका आरसीएम, हम्म। ये वाला आपका 5,000 से नलिफाई होगा और 2,000 आपका गवर्नमेंट को खड़ा होगा पेबल। ये वाली जो एंट्री लिखी है ना आपने नीचे, पेबल टू गवर्नमेंट बैलेंस शीट अकाउंट आरसीएम जीएसटी 3,000, ये आ जाएगा ऊपर वाला पार्ट आपका। ऊपर कैसे होगा? सुनो तो ये समझो दोनों ना बैलेंस शीट का पार्ट ही रहेंगे, पीएनएल का पार्ट कोई भी नहीं है इसके अंदर। ऐसे बोले हो? लेकिन हाँ लेकिन ये जो है, ये तो उसका डेबिट लाइन में आ रहा है ना, तो डेबिट हाँ। तो तो बैलेंस शीट। डेबिट सर नलिफाई करने के लिए तो खड़ा करना पड़ेगा ना वेंडर का लेजर हमें। ऐसे वेंडर बोले का हो? लेजर, हाँ वेंडर का लेजर ऐसे नलिफाई करोगे आप। अच्छा तो एंट्री आप एंट्री को आप एंट्री को कैसे नलिफाई करोगे अगर वहां से 30,000 हटा दोगे तो। हाँ, बराबर।
तो आप बोलो कि ये ऐसे ही रहेगा, ये ये ऐसे ही रहेगा। एक जीएल हाँ, इधर। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। अगर आप किसी रजिस्टर्ड वेंडर को सेल कर रहे हो ना कस्टमर को, तो आपके 5,000 वहां से आउटपुट हम्म जीएसटी से 3,000 आपके आरसीएम से एडजस्ट होगा और 2,000 आपका पेबल खड़ा होगा। हम्म ये ऐसे एंट्री चलती है। और अगर आपका कस्टमर भी और सब आप वो है क्या कहते हैं आपका सब अनरजिस्टर्ड है, तो आपका ये 5,000 भी आपका पेबल होगा। फिर इस केस में आपका 8,000 का पेबल खड़ा हो जाएगा। ये तो 8,000 पेमेंट खड़ा हो हाँ, फिर जाएगा। ये 8,000 खड़ा हो जाएगा गवर्नमेंट को पेबल करने के लिए। तो लेकिन ये दोनों नेटअप हो जाएगा बोल रहे हो? हाँ, ये तो नेट ऑफ करना ही पड़ेगा सर आपको। और इसका जीएल क्या अलग बनाएगा क्या इसका? हाँ, दोनों का जीएल ये सर वो बताएगा। हम तो अब क्या करते हैं, कस्टमर हमेशा अलग ही बनवाता है हमसे। तो वो कहता है आप आरसीएम का अलग बना दो। एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको चेक करेंगे कि हमारा आरसीएम कितना खड़ा हुआ है, ऐसे कितने वेंडर है जो हमारे रजिस्टर्ड नहीं है, जिससे हम इनपुट नहीं ले सकते हैं। तो हम तो अलग ही बनाते हैं सबका। हम्म मुझे क्या लग रहा है पता है क्या, मेरे बात थोड़ा ध्यान से समझो। मुझे क्या लग रहा है, ये मेरा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुझे क्या लग रहा है, देखो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, मैं जो जीएसटी में यहाँ पे जो ये पेएबल रिसीवेबल ये दोनों नेट होता है, हम्म, राइट? हम्म, क्योंकि मैं रजिस्टर हूँ, मेरा वेंडर रजिस्टर है। हम्म, इस केस में मेरा जितना मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडर, हम्म, मैं उसका क्लेम नहीं कर पाऊंगा गवर्नमेंट से। हम्म, आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वाट एवर आई पे हियर, इट इज स्ट्रेट फॉर माई लॉस, माई एक्सपेंसेस, हम्म, बिकॉज आई कैनॉट क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम्म, इसलिए मुझे क्या लग रहा है, इसका एक लाइन जाएगा पीएनएल में जो मेरा लॉस होगा, लॉस दिखाऊंगा एज एन एक्सपेंसेस। दूसरा लाइन रहेगा मेरे पेबल टू द वेंडर, टू द सॉरी पेबल टू द गवर्नमेंट, जो कि मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये मैं किसके हाथ में नेट ऑफ नहीं कर सकता, ना मैं पे रिसीव करूंगा कुछ करूँ, ये मैं गवर्नमेंट को जाएगा। और गवर्नमेंट को कैसे जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपेंसेस, दिस टोटली माई पीएनएल एक्सपेंसेस। मैं बोलूंगा भाई ये देखो मेरा लॉस ही है, मैं गवर्नमेंट से क्लेम ही नहीं कर पा रहा हूँ इसे, ये मनी। मुझे ये लग रहा है। नहीं सर, इसमें के मेरे को जो लगता है वो गवर्नमेंट से हम ले सकते हैं आरसीएम का इनपुट। श्योर। मैं एक बार ही अपने एसएपी में चेक करके बताऊंगा आपको कि क्या एंट्री जाती है उसकी। देखते हैं, को पायलट मारते हैं, रुको। कैन आई क्लेम आरसीएम जीएसटी, आरसीएम इनपुट जीएसटी, राइट? फ्रॉम गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है सर, आई एम एंजॉइंग इट। हाँ, वेरी गुड। Yes, you can claim input tax credit on GST paid under the reverse charge mechanism, but only if certain conditions are met. हम्म, Eligible to claim RCM input GST to avail ITC. इनपुट In टैक्स RCM क्रेडिट। GST, you must be registered taxpayer under GST. Very good. ठीक है। Have paid the RCM liability in cash. Okay. Use the goods or services for business purposes. Report the RCM liability. ठीक है. Use your self invoice to supplier. If the okay, if file your GST return on time. Time okay, then you can claim that you are saying. नहीं, हम कर सकते हैं क्लेम सर, करते हैं हम लोग क्लेम। Very good. Reverse charge mechanism, but can underpaid. हाँ, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और कैश में पेमेंट होनी चाहिए, तो वो सर्टन कंडीशंस रहता है। तो फिर अगर ये है, राइट? ओके, होल्ड ऑन, अनदर एस्पेक्ट आई टेल यू। जब मेरा नॉर्मल में मैं सेल करता हूँ, राइट? जब मैं नॉर्मल में मैं सेल करता हूँ आउटपुट के लिए, मेरा लाइबिलिटी खड़ा होता है, ठीक है? ये मेरा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी पार्ट हो गया आपका। पहले पार्ट हो गया। मेरा यहाँ हाँ, पे मेरा लाइबिलिटी खड़ा हो गया। बिल्कुल खड़ा हो गया। ओके, मैं नेट कैसे करूँगा कि क्लेम कैसे करूँगा? इसको देर आर टू ऑप्शंस। इसको मैं सेपरेटली मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, और मैं नेट ऑफ करके क्लेम करूँगा। हाँ सर, इसकी एक रिटर्न बनती है, वहां पर जाता है, ये मेरे को भी ध्यान नहीं है। इसकी एक आप रिटर्न समझ रहे हो बनती ना? है। हाँ, आइदर टू ऑप्शंस टू क्लेम दिस मनी। पहला ऑप्शन क्या है? सेपरेट रिटर्न फॉर आरसीएम, सेपरेटली फॉर आरसीएम। सेकंड क्या क्या होता है? नेट ऑफ
with normal GST, normal input GST. आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट जीएसटी। नो इनपुट होगा ना, बताता हूँ रुको। Why I'm telling you, I'll tell you why. Why normal input GST? Because this is become a payable in the time of RCM. In the time of normal, it become a receivable. इसका पेबल पार्ट बनेगा ना सर। 3000 का आप पे कर रहे हो और ले रहे हो परचेस के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे आप 5000 दे रहे हो, तो 2000 का नेट हो गया आपका। No da, so सुनो ना, this is my normal input GST. When I'm input, I am going to receive that money, right, from हाँ, government. यस यस। This is my, if I put it here, receivable from government, right? In case of a normal registered vendor transaction, then this ये एसेट हो become, गया आपका, ये एसेट का मेरा पार्ट, एसेट ये हुआ मेरा आपका। एसेट पार्ट हो जाता है। बिल्कुल। जब नॉन रजिस्टर्ड केस होता है तो सेम इनपुट के लिए मेरा ये पेबल बन जाता है, हाँ राइट? तो ये हाँ दोनों को मैं नेट, आइदर टू ऑप्शन, आइदर मैं ये दोनों को नेट कर सकता हूँ हाँ, और इसको मैं सेपरेटली क्लेम करूंगा गवर्नमेंट से। सेपरेटली भी कर सकते हो आप। मैक्सिमम मैक्सिमम कस्टमर वेंडर जो भी है ना आरसीएम का केस में सेपरेट ही करवाते हैं। पक्का? दैट्स योर एक्सपीरियंस? 100% पक्का, क्योंकि मैं सर जितने भी मेरे कस्टमर सब 100% सबके लेजर्स अलग बनवाते हैं, बाद में वो अपने आप एडजस्टमेंट करते हैं। हम्म, क्योंकि उनको देखना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे ऐसे कितने कस्टम वेंडर हैं जो हमारे आरसीएम के केस में हम उनके बिहाफ पे जमा करा रहे हैं गवर्नमेंट से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। तो फिर अगर मैं गवर्नमेंट से, और एक एंगल यहाँ पे ओपन होता है, तो फिर अगर गवर्नमेंट से मैं ये क्लेम कर सकता हूँ, राइट, हम्म। तो फिर ये मेरा लॉस नहीं हुआ ना, बिकॉज आई कैन गेट दैट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? नहीं, ये वाला लॉस नहीं होगा आपका। लॉस उस केस में होगा जिसके अंदर आपका कस्टमर और वेंडर दोनों आपका अनरजिस्टर्ड होगा, जिसमें आप क्लेम ले ही नहीं सकते हो। बराबर। तो ये उस लाइन फिर केस क्या में होगा, ये लॉस है एक्सपेंसेस आपका। में P&L में जाएगा बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो सर ये दोनों बैलेंस शीट के पार्ट बनते हैं। कैसे बोल रहे हो? नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को डाउट है इस वाले में, डेबिट वाले में। मेरे हिसाब से दोनों बैलेंस शीट के पार्ट बनते हैं आपके आरसीएम के केस में। हम्म, ये मैं देख के बताऊंगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट से अगर पैसा ले ले रहा हूँ ये वाला क्लेम करके, तो हाँ, फिर मैं मेरा एक्सपेंसेस में क्लेम क्यों करूंगा इसको? इट्स नॉट माई एक्सपेंसेस, नो। नहीं एक्सपेंस नहीं हो गया ये हमारे, ये तो कंफर्म है, ये एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा आपका। ये दोनों लेजर जाएंगे आपके बैलेंस शीट के पार्ट में। हम्म, ये आपका खर्चा है ही नहीं ना सर। खर्चा तो उस केस में बनेगा जिस केस में आपका बैलेंस क्या कहते हैं, कस्टमर और वेंडर दोनों आपके अनरजिस्टर्ड है। तो करेक्ट, क्या आप भी अनरजिस्टर्ड हो, सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है, करेक्ट। उसमें आपका खर्चा बन गया, ना आप गवर्नमेंट को दे रहे, ना आप गवर्नमेंट से ले रहे हो। आप खर्चा बुक कर रहे हो, आप उसको पूरी पेमेंट करके निकल रहे हो आप आगे। अच्छा, और एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, मैं बोलूँगा मेरा जो टोटल खर्चा हो रहा है 33,000 का, हाँ उसमें से, हाँ ये भी हो सकता है, रुको, आई एम जस्ट फॉर द टाइमिंग आई एम गोइंग टू हाइड दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके? आई विल हाइड ये इट। इस केस में बनेगा, ये 33,000 हो जाएगा यहाँ। बता दो एग्जैक्टली, मैं कहने वाला चाहता हूँ, मेरा टोटल खर्चा है मेरा 33,000 का, ये सही है अभी सर, देखो ये 33,000 का। नहीं, ये उस केस में सही है सर जिस केस में आपको इनपुट मिलेगा ही नहीं। इस केस में आप इनपुट नहीं ले सकते गवर्नमेंट से। करेक्ट। हाँ, इस केस में इनपुट नहीं ले सकते आप गवर्नमेंट से। आपने पूरा खर्चा बुक कर लिया 33,000 का। हम्म, हाँ, आप इनपुट उस केस में ले सकते हो जिसमें आपने 30,000 का खर्चा बुक किया है, 3,000 का आरसीएम बुक किया है। करेक्ट। हाँ, इस केस में नहीं ले सकते आप गवर्नमेंट से कुछ भी। क्या ये हो सकता है, मेरा 30,000 में एक ही तो बात होता है। ये लाइन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि नहीं? हम्म, ये मैं देख के बताऊंगा आपको ना, हम कहाँ बनाते हैं इसका लेजर। व्हाट इज द जोनल एंट्री
और आरसीएम इनपुट आरसीएम केस लिख दो बस, बहुत है। आरसीएम केस आरसीएम जीएसटी केसेस वाप- पढ़ वो इसको लेट्स अज्यूम expense amount is 2000 GST is 5% हम्म just on 10,000 okay ठीक है, 5% लग गया तो 20,000 पे 1,000 आ गया आपका। ये मेरा एक्सपेंस टू या वेंडर हो गया, ठीक है सर, चलते रहो चलते रहो, ठीक है। खर्चा बुक ठीक कर लिया यहाँ पे आपने, और उसके बाद वेंडर को पेमेंट कर दी बैंक से। खत्म कहानी हाँ, यहाँ पे खत्म हो गई एक्सपेंस की। अब देखो यहाँ पे ये ना, देखो रिवर्स चार्ज में बुक करा आरसीएम के में 1,000 रुपये आपने डेबिट, और यहाँ पे आउटपुट जीएसटी बुक कर दिया 500 500। ठीक है यदि यहाँ तो समझ में आ गया लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है ये मैं कहाँ पे जा समझ रहा गया है सर, मैं समझ गया, चलो वहाँ पे चलो, छोड़ दो, मैं समझ गया। हो गया हाँ मैं समझ गया। जो अपन ने वहाँ पे लेजर लिखे है ना, ऊपर आएगा रिवर आरसीएम इनपुट जीएसटी और नीचे आएगा आरसीएम आउटपुट जीएसटी। बराबर मैं देखो यहाँ पर आपने क्या करा, ऊपर वाली एंट्री में क्या करा सर, ऊपर चलो, ऊपर हो गया देखो। यहाँ पे बस 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 यहीं पर ही देखो, थर्ड वाली एंट्री में आपने क्या किया, 1,000 रुपये बुक किया, ठीक है। अब आपने एक्सेल हम्म खोलो, इसको थोड़ा सा साइड करो, इसको थोड़ी सी साइड करो एंट्री को। हाँ, हम्म एक्सेल खोलो। अब यहाँ पर आपने 3,000 जो यहाँ बुक किया ना सर, यहाँ पे हम्म लिखोगे आरसीएम जीएसटी का अकाउंट, ये बिल्कुल ठीक किया आपने बुक, ठीक है। बराबर और नीचे लिखोगे आरसीएम आउटपुट जीएसटी। ये वाला हाँ, आउटपुट कहाँ आएगा ये तो इनपुट ही है यार खोलो देखो, वहीं खोलो, चैट जीपीटी खोलो, ठीक है। ओके ठीक है, आपने यहाँ पे आउटपुट जीएसटी बुक कर लिया, ओके ठीक है सर। ओके ओके इट इज गेटिंग ट्रीटेड लाइक आउटपुट लाइबिलिटी हाँ हाँ हाँ, ये लायबिलिटी है आपका एक तरीके से। आप जो डेबिट वाला जो हमारा आरसीएम बुक हुआ है 3,000 रुपये, इसका इनपुट हम्म लेंगे हम गवर्नमेंट से। बराबर हाँ, आप ऊपर वाली एंट्री खोलो चैट जीपीटी की। अब देखो ये एक आउट चार्जेस यहाँ से तो आपने फिफ्थ फोर्थ एंट्री में गवर्नमेंट को बैंक को पे कर गवर्नमेंट को पे कर दिए। गवर्नमेंट पे कर दिया दिस पार्ट इज क्लियर ये हाँ वन ठीक है, अब पार्ट इज नीचे क्लियर चलो, अब आईटीसी क्लेम करेंगे हम। अभी ये वाला मेरा डेबिट साइड में पड़ा हुआ है हाँ, मतलब पीएनएल में पड़ा हुआ है पीएनएल में पड़ा हुआ आपका। ओके आगे अब चलते देखो, हैं जब मेरा अब आपका इनपुट अब आपका जो इनपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी पड़ा था किधर पड़ा था ये तो है नहीं डेबिट साइड में, जो पड़ा था उसको रिवर्स चार्ज को आपने क्रेडिट कर दिया। ये क्रेडिट हो गया ये हाँ, कहाँ से आ गया जो आपका डेबिट वाला पड़ा हुआ था, बराबर ठीक ये है कहाँ सर। पे आया ये वाला तो आपका वो है ना सर, ये आप क्लेम करोगे ना सर गवर्नमेंट से। आप उधर चलो, एक्सेल पे चलो, देखो सर, ये 3,000 आपने सपोज आपने गवर्नमेंट को पे कर दिए, 13 लाइन वाला जिसपे आपका कर्सर है वो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिए अभी, बराबर ठीक है। अब ये जो आपका डेबिट वाला पड़ा हुआ है 3,000 ऊपर, हम्म ये 3,000, ये वाला आरसीएम जीएसटी, तो ये आर जो नीचे इसमें वाला। आरसीएम इसमें आरसीएम बुकिंग हाँ, तो ये जो आपका जो 3,000 इसमें बचा ये हुआ है ना, आरसीएम रुको आरसीएम पेमेंट टू गवर्नमेंट क्या होगा ये होगा मेरा ये वाला अमाउंट है हम्म बराबर हम्म ये मेरा डेबिट ये मेरा 3,000 हम्म, और ये हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट ठीक है ये क्रेडिट हो गया 3,000 बराबर उसके बाद ये नेट हो गया दिस वन इज ऑल सेट मैंने बैंक में पेमेंट दिया ठीक है अब मैं ये वाला सेट करूंगा ये कैसे करूंगा मैं क्लेम अब ये वाला आप सब के सेट करोगे। अब इस केस में क्या होगा सर, आपका क्लेम आरसीएम कैसे करोगे आप। अब आपने सेल हाँ करी है बताता हूँ ऊपर, मैं अब वो वाली एंट्री को कॉपी पेस्ट करो, ये वाला एंट्री राइट कॉपी साइड पेस्ट वाली। करो नहीं, ये वाली नहीं सर,
पहले उधर इस, हाँ ये ठीक है आपकी, 3,000 हो गया सर, ये आपका हो Yes, गया डेबिट, ये क्रेडिट से डेबिट हो गया, ठीक है, डेबिट से क्रेडिट हो गया। बराबर। अब ये 5,000 जो राइट साइड आ रहे हैं ना आपके नीचे, राइट साइड वाला जो नॉर्मल जीएसटी आउटपुट वाला केस है, हम्म, इसको कॉपी करके इधर लेके आओ नीचे। कौन सा नहीं बोलो? ये, हाँ अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 5,000 क्लेम, नहीं 5,000 क्लेम करोगे, 5,000 लिखो। अब आपने 50,000 की सेल करी है ना सर, 50,000 पे अच्छा, 5,000 का आपका आउटपुट जीएसटी पेबल पेबल कस्टमर को पे कर रखा है आपने। अब उसका बराबर आप लोगे कस्टमर से इनपुट, बराबर। गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से अभी आप 3,000 का इनपुट ले सकते हो जो आपने आरसीएम के केस में भेजे जमा किया हुआ है। हम्म, तो अब आपका जो आउटपुट का जीएसटी इस केस में बनेगा वो 2,000 पे पे करोगे बस। एग्जैक्टली। हाँ क्लेम फ्रॉम गवर्नमेंट और नेट ऑफ एग्नेस्ट हाँ। आउटपुट जीएसटी। अब आप ये जो दो एंट्री आपने बनाई है ना, 3,000 3,000 5,000, ये आपको हाँ एक कंसोलिडेट एंट्री बनाओ, नीचे नीचे बनाओ, हाँ सी के नीचे बनाओ। हाँ हाँ, बस ये अच्छा, ये वाला बोल रहे हाँ हो? इसी का एक कंसोलिडेट एंट्री बनेगी एक, जो अकाउंट्स वाले वो करते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप आउटपुट जीएसटी पेबल 5,000 पे करना है हमें, जो हमें इनपुट लेना थी, ये जो इनपुट लेना है कर गवर्नमेंट से, एक तरीके से आप बना लो 5,000, यहाँ ये वाला 5, जो है, हाँ इसको कॉपी करो पूरी लाइन को। कर दो इधर ही, आउटपुट हाँ जीएसटी ये हमने पेबल। पेमेंट, हाँ ये पेबल है ना हमारा खड़ा है। ये पेबल मैंने कर दिया। हाँ तो इसको ये डेबिट में, मेरा करेक्ट, ये पे मेरा 3,000 रुपये यहाँ से आ हाँ गया। तो नीचे अब आ जाएगा आपका बैंक, टू बैंक आ जाएगा बस यहाँ पे, ये बैंक आपके 2,000 पे होंगे बस। अब ये एंट्री बनेगी आपकी जो अकाउंट्स वाले बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, तो बैंक को 2 बार हिट होगा क्योंकि एक आपका सर आरसीएम नहीं नहीं पेमेंट नहीं नहीं सेपरेट नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, 2 बार नहीं होगा, ये यही तो कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैंने क्या कहा था, कंट्रोल जेड करो अभी, कंट्रोल जेड करो, हम्म कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, हाँ हम्म बस कंट्रोल जेड करो, बस अब ठीक होगा। हाँ इसको 5,000 लिखो, 5,000 लिखो, 5,000 हम्म, लिखो, 5,000, इसको 5,000 लिखो। अब एक नीचे नई एंट्री बनाओ, इन दोनों की एक एंट्री पास होगी 15 लाइन से लेके 19 लाइन तक। हम्म, 15 से लेके जो सीरियल नंबर आपका लाइन है ठीक ना, है। 15 से लेके 19 तक की एक एंट्री पास होगी। इनपुट जीएसटी लेना है मेरे को गवर्नमेंट से 5,000, क्रेडिट आरसीएम रिसीवेबल 3,000, टू बैंक रु- 2,000। रुको, आप बोलो इसको मैं लेकर आता हूँ नीचे, ठीक है, इसको नीचे लेकर आया, इसको मैं डेबिट, इसमें क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दो, हाँ ये गवर्नमेंट ठीक के है, लिए जाएगी, ठीक है, इसको ये वाली डेबिट में डालो ऊपर, 5,000 वाली, हाँ ये वाला मैं कॉपी करके डेबिट में डालो, हाँ। डेबिट में डाला अब 5,000। एक क्रेडिट की लाइन और बनाओ। ये बैंक में आ गया। हाँ ये एक्चुअल पेमेंट जाएगी गवर्नमेंट को 2,000 की, क्रेडिट साइड में डालो ये तीन और दो को राइट साइड में, इस कॉलम से हटा के बराबर। राइट साइड में, ये जाएगी आपकी जब आपकी 3B बुक होती है, हम्म, ये एंट्री बनेगी आपकी। बराबर। एक्चुअल गवर्नमेंट को पेमेंट हमारी 2,000 गई है, 3,000 हमने आरसीएम का इनपुट ले लिया, 5,000 हमारे आउटपुट जीएसटी ऑलरेडी हमने कस्टमर को पे किया हुआ था, उसका हम इनपुट लेंगे गवर्नमेंट से। सही बात है। तो ये सेपरेट एंट्री बनेगी सारी जगह में? ये आपकी चारों एंट्रियां बनेगी, अकाउंटेंट सारे ऐसे ही काम करते हैं, या एट द एंड ऑफ द मंथ ये सारे रिपोर्ट ऐसे ही बनाते हैं ये। करेक्ट, ये मेरा आरसीएम बुकिंग हो जाएगा, एक्सपेंस लाइन में यहाँ पे खड़ा होगा। ये मेरा एक पेबल क्रिएट होगा, उसके बाद आरसीएम पेमेंट टू गवर्नमेंट होगा। अच्छा, ये वाला एंट्री चाहिए या नहीं चाहिए? ये आपकी 15 से लेके 19 तक की कोई एंट्री नहीं आएगी, ये आपके इंटरनली बुक्स में मेंटेन होगी बस। ये पता, ये एंट्री नहीं चाहिए, नहीं बराबर। नहीं, ठीक है, हाँ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, एग्री विथ यू। ना आप बोले मेरा जो इनपुट जीएसटी जो यहाँ पे खड़ा था, इसमें हाँ रेगुलर रेगुलर जीएसटी वाला जो केसेस है और रजिस्टर्ड वाला केसेस है, यहाँ से मैं इनपुट 5,000 लेके आऊंगा, ये जो सेल हुआ था, ठीक है, मुझे इसमें आउटपुट रहे, हम्म, इसमें आउटपुट हाँ दिए आप, हाँ और ये ये मेरा नीचे आएगा 5,000। आरसीएफ इनपुट जीएसटी।
ये इसको लिख दो, आरसीएम का जो पे, हाँ ये हाँ मेरा ये जो, हमारा इनपुट, इसको लिख दो आरसीएम इनपुट जीएसटी। ये मेरा आरसीएम का इनपुट जीएसटी आ जाएगा। हाँ ये एंट्री बनेगी नेट ऑफ द एंड हर महीने के आखिरी में बस। तो ये मेरा ये सेट हो गया बराबर, हम्म इसका भी हम्म ये सेट हो गया। हम्म। होल्ड ऑन, कहाँ सेट हुआ भाई? ये तो क्रेडिट में खड़ा है। अरे सर ये तो पार्ट रहेगा आपका, बैलेंस शीट का पार्ट रहेगा ही रहेगा। ये जब आपका थ्री भी बनाते हैं, जब एडजस्ट करते हैं अकाउंट्स वाले, इसके नो एंट्री डाउट पता मेरे, है मुझे ध्यान हाँ नहीं है मेरे पास, मेरे पास समझो ना थोड़ा सा, और आई एम सेइंग इज, पहला हाँ एंट्री में यहाँ पे क्रेडिट में खड़ा है, हाँ इसको तो कहाँ पे मैं तो डेबिट तो करना पड़ेगा ना मुझे, ये क्रेडिट में खड़ा है राइट, हाँ हाँ। तो फिर मैं क्रेडिट नहीं ला सकता ना यहाँ पे, तो ये वाला एंट्री चाहिए जो क्रेडिट में यहाँ पे खड़ा है, थोड़ा इसको एक ध्यान दो। एंट्री पास हुई नहीं, बैंक को तो जाएगा नहीं सर ये बैंक को नहीं जाएगा जो आप कह रहे हो। ये मैं आपकी बात समझ गया। ये क्रेडिट में खड़ा है, हाँ इसको मैं नेट ऑफ करना पड़ेगा ये इसके साथ, क्योंकि मेरा जो क्रेडिट में खड़ा है उसको मैं पहले सेपरेटली पे करूंगा पेमेंट को। मेरे हिसाब से नहीं होगा सर, ये डाउट है मुझे। मेरे अच्छा को तो मेरे हिसाब से हाँ ये पूरा डाउट है जो आप लास्ट बात कह रहे हो। ये वाली एंट्री तो आपकी जाएगी जाएगी लास्ट वाली। ठीक है, मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ आपको, इसमें अगर ये नहीं जाएगा राइट, लेट्स सी, ये मेरा रजिस्टर रेगुलर जीएसटी अमाउंट, ये एंट्री तो परफेक्ट है। ठीक है, ये तो ऐसे जाएगी आपकी। तो आपका ये हो गया मेरा रेगुलर जो जीएसटी है, यहाँ पे मेरा क्रेडिट जो था मैंने यहाँ पे डेबिट करके लेके आ गया 5,000। ये हम्म, जो मेरा क्रेडिट साइड में खड़ा है राइट, इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं डेबिट कर दूंगा, लेट्स सी हाउ इट गोज राइट। हम्म, मेरा हम्म, कितना रहा? 3,000 रहा। हम्म। ठीक है, तो इसके साथ ये क्लियर हुआ, वो ये आपका भी खर्चे बुक हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। हम्म, अब ये जो है, नहीं सर अभी गलत कर दिया आपने। गलत कर रहे हैं ना, हाँ ये क्योंकि गलत ये कर दोनों तो क्लियर तक किया हमने। दिया। ये तो क्लियर, ये वाला यहाँ नीचे वाली एंट्री तो आप छेड़ो ही मत, वो तो आपको ऐसे ही चाहिए। सबसे लास्ट वाली एंट्री तो वही जाएगी। 5,000 में से 3,000 आपका आरसीएम का इनपुट एडजस्ट होगा और 2,000 बैंक को जाएंगे। बैंक से गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाएगी। ये जो ऊपर वाला है ये आपका खर्चे के पार्ट में इंक्लूड होगा मेरे हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है। ऐसे बोले हो? सर मैं देख के बताऊंगा, देखो मैं भी उसे श्योर नहीं हाँ ना, हूँ। तो ये थोड़ा सा श्योर, कंफ्यूजन हो रहा है राइट। हाँ ये एक बार सर से भी डिस्कस कर लेंगे दोबारा। ये डिस्कशन करेंगे। उनसे बोला कि एक एंट्री। मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा सुनो ध्यान से, ये वाला एंट्री सही है, ये जो सेपरेट ये रह गया ना, हम्म, इसको मैं सेपरेटली गवर्नमेंट को पे करूंगा, बिकॉज इसमें पेबल एंट्री। हम्म, ठीक है, ये मैं सेपरेटली पहले मैंने पे कर दिया। और जो एक्सपेंसेस लाइन जो यहाँ पे खड़ा है, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा कहाँ पे? मेरा इनपुट जीएसटी पे एज ए रिसीवेबल। हम्म, ओके, ये मेरा रिसीवेबल, नो दिस इज समथिंग ट्रांसफरिंग एक्सपेंसेस जीएल टू जीएसटी रिसीवेबल, मैं ट्रांसफर करूंगा बिकॉज मेरा एक्सपेंसेस भी यहाँ पे खड़ा है राइट, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इनपुट जीएसटी को। ठीक है, सो दैट आई कैन क्लेम दैट मनी। एक बार यहाँ मेरा रिसीवेबल खड़ा हो गया, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट राइट, ये मेरा रिसीवेबल खड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट राइट, जो क्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट है, यहाँ पे आता हूँ मैं, मेरा क्या क्या क्लियर हुआ, ये लाइन मेरा क्लियर हुआ। ठीक है, ये लाइन भी मेरा क्लियर हो चुका है विथ दिस। ओके, और ये मेरा 3,000 रुपये यहाँ पे होगा, और मैं सब कुछ अभी क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। और मेरा रेगुलर जीएसटी जो है, वो फॉर एग्जांपल ये मेरा आउटपुट जीएसटी मेरा 5,000 है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं अगर कंबाइन कर दूंगा पेबल टू गवर्नमेंट, इसका तो ये तो सब कुछ तो क्लियर हो चुका है। हाँ रुको, ये जो रिसीवेबल है, हाँ रुको 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 रुको, यह मेरा पेबल रिसीवेबल एंट्री मैंने यहाँ पे डाल चुका हूँ राइट, हम्म, ये मेरा 5,000, ये जो है, ये जो है, ये आएगा मेरा यहाँ पे
ये एंट्री पूरा आएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरा क्रेडिट लाइन पे होगा। अब होगा ये एंट्री। ये सर, ये दो जो आपका क्रेडिट वाला है ना, ये जो आरसीएम इनपुट जीएसटी ये लिखा हुआ है ना 13 लाइन पे, या तो ये जो 13th लाइन पे लिखा है ना आपने, हम्म 13 लाइन पे पेबल टू गवर्नमेंट, ये लिखो आरसीएम आउटपुट जीएसटी, ये तो आउटपुट जीएसटी में बुक होगा आपका। इसको पहले टिक लेकिन करो। नहीं, ये आउटपुट लेकिन ही रहेगा। ये ऐसा ऊपर है, वाला, नहीं, ये आपका आरसीएम इनपुट होगा डेबिट वाला, और क्रेडिट वाला होगा आपका आरसीएम आउटपुट। ये तो कंफर्म है मुझे। ऐसा ऐसे बोले हो। हाँ, इसको पहले लिखो, सही करो। लेकिन ये परचेज में आ- हो रहा है, राइट? और ऊपर करो, इसको इनपुट करो। नहीं सर, ये आरसीएम के केस में ऐसे बुक होता है। इसको इनपुट ऐसे करो, बोले। ओके इसको ओके, इनपुट ठीक है, करो। इसको इनपुट करो। ठीक है। और अब ये जो नीचे वाली जो एंट्री है ना, इससे 3000 वाली, ये आपकी इससे तो नलिफाई हो गई अभी। ठीक है, ये आपने बैंक को बराबर पे कर दिया। ठीक है। अब ऊपर बराबर वाला जो आरसीएफ इनपुट हमें लेना है 3000 का, ये मेरा खड़ा हुआ है। ये मैं 3000 बराबर। किससे एडजस्ट करूंगा? मैं करूंगा ये जो मैंने 5000 पे किया इससे, है ना? ये मैंने ये वाला हाँ, मेरा है, ये हाँ वाला ये मेरा है। वाला, हाँ ये वाला जो मैं पे करूंगा, हाँ ये वाला 3000। हम्म, ठीक है, इनपुट। ये मेरा, हाँ। अब ये वाला जो 3000 अच्छा, बचा मेरा, इसका मैं इनपुट को इसका इनपुट लूंगा गवर्नमेंट से। किस ब्याज पे लूंगा? जो मैंने 5000 पे किया है गवर्नमेंट को सेल के टाइम पे। ये देखो, ये वाला एंट्री। हाँ हाँ, ये बनेगी एंट्री इसकी। मुझे लगता है ये हम सही जा रहे हैं अभी। ये वाली एंट्री बनेगी आपकी, ये वाली एंट्री सही बनेगी आपकी। ये सही गए हम अभी, है कि नहीं? हाँ हाँ ये हम सही गए अभी। ये मेरा रेगुलर रिसीवेबल जो है, जो ये वाला इनपुट जीएसटी है। हाँ। नहीं, ये मेरा आरपीएफ, ये ये वाला तो भूल जाओ, ये तो हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को। नहीं, इसको मत छेड़ो, इसको मत नो छेड़ो। नो इसको डा, पर मैं यहाँ से लेकर आऊंगा ना ये वाला। है। ये से लेकर आना पड़ेगा ना, ये देखो। नहीं, अभी भी हम गलत कर रहे हैं, अब भी गलत कर रहे हो आप। देखो, जो एंट्री बनेगी मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म इसका कैटेगरी क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा या बैलेंस शीट आइटम रहेगा? कौन से वाले का था? ये वाला, ये ये होगा वाला, इससे। ये वाला तो आपका बैलेंस शीट का पार्ट बना ना, ये तो गवर्नमेंट को पे कर दिया ना नीचे वाला। नहीं, ऊपर ये वाला बोल आपका रहा था मैं। खर्चे का, ये दोनों ही बैलेंस शीट के पार्ट बनेंगे मेरे हिसाब से सर। विथ यू कम्प्लीटली। ये मेरा बैलेंस शीट आइटम रहा। ये हाँ मेरा बैलेंस शीट आइटम रहा। एक हाँ लाइन मेरा जाएगा आपका इनपुट जीएसटी में, हाँ दूसरा जाएगा मेरा आउटपुट जीएसटी में। हाँ ठीक है, ये मेरा हाँ। पेएबल रहा। ठीक है, जब ये पेएबल था, ये हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया बैंक के थ्रू, ये काम हमने खत्म। बैंक के थ्रू खत्म कर दिए। ठीक है, हाँ ये दोनों हाँ, क्लियर हो गया। अब मेरा ये यहाँ खत्म पे हो खड़ा है, गया। हाँ, ये ये हमें जो लेंगे इनपुट इसका। हाँ, ये जो डेबिट खड़ा है, हाँ ठीक है, हाँ, ये जो डेबिट खड़ा है इसको लास्ट वाले एंट्री में आपने क्रेडिट किया। इसमें, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इस लाइन को हटा दो, ये कंफ्यूज कर रही है। ये एंट्री आती नहीं कहीं भी जो आपने डाली है। ये एंट्री आती नहीं है। ये हाँ, ये एंट्री आती, आती नहीं है, तो ये अभी इसको अगर इसको इसको मैं हटाओ, हाइड हाइड कर करता हूँ। दो, हाइड कर दो। जी मेरे अब भाई। हाँ, ये आएगी अब आपकी। अब ये जो रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट 3000 था, ये ये क्रेडिट हो गया आपका, यहाँ मेरा, इनपुट ये ले लिया। आरसीएम जीएसटी में ये मेरा इनपुट मैंने आरसीएम लिख credit दो, किया। इसको भी आरसीएम लिख दो। हाँ ठीक है। 3000 मार दिए, क्रेडिट मार दिए। यहाँ हाँ, पे जो मेरा क्रेडिट यहाँ पे था, यहाँ लाइबिलिटी पे था, वो मैंने डेबिट के यहाँ एंट्री पास पे करी। डेबिट पर और बैंक, कर दिया। हाँ और जितना रह गया बैंक हो जाए। हाँ ब्रिलियंट यार, दिस इज व्हाट वी हाँ, डिड फाइनली। यही जाएगी एंट्री और यही जाती है। हम्म और उस यही केस में क्या जाएगा। होगा? हाँ, यही एंट्री जाएगी। और उस केस में क्या होगा? अगर आपने सेल भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर को करी है, हम्म ठीक है, उस केस में आपका ये लास्ट वाली एंट्री 5000 और 5000 जाएगी। फिर उस केस में आपके 2000 नहीं जाएंगे, पूरे 5000 जाएंगे गवर्नमेंट को। बराबर। अगर 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 कौन सा बोलो, अगर, अगर मैंने ये जो 5000 की जो सेल करी थी ना अभी आपने, हाँ अगर ये हाँ मैं अनरजिस्टर्ड सेलर को करूंगा ना, हाँ, ठीक है, और उस जिसमें हम इसको एक्सपेंस का पूरा पार्ट बनाएंगे, तो ये आपका जो डेबिट वाला जो रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट बैलेंस शीट लिखा है ना, इनपुट जीएसटी वाला आरसीएम इनपुट,
ये हम्म आपका बन जाएगा खर्चा, हम्म ये बन जाएगा आपका खर्चा, ये हो जाएगा 33,000 एक्सपेंस में बुक पूरा। अगर ऑन रजिस्टर सेलर को बेच रही हो। हाँ, दो केस बनते हैं आरसीएम के। अब इस केस में क्या होगा, एक्सपेंस 33,000 हो जाएगा, क्रेडिट वेंडर 30,000 हो जाएगा, और आरसीएम आउटपुट जीएसटी 3,000 हो जाएगा। करो भाई, ये भी, हाँ ये वाले, ये हमने वेंडर को बेचे, मतलब ये नहीं, हमने वी हुई वेंडर वी से परचेज किया, कुछ बॉट, सर्विस ली हमने। सर्विस लिया, ये किसको बेचे, ये वाला केस में क्या होगा बताओ। किसमें, सेल के केस में सर? सेल के केस में यही चलेगा जो ऊपर चल रहा है आपका। ठीक है, इसको ये कॉपी करते हैं सेम, नीचे। ये तो सेम चलेगा, ये आपका पूरा सिनेरियो बन गया अब आपका ये वाला। देखो ये रेवेन्यू मेरा 45,000, हाँ ये लेकिन इसमें कस्टमर रजिस्टर नहीं है, ऑन रजिस्टर्ड कस्टमर है ये। हाँ, तो B2C हो गया ना सर। सेलर भी आपका, इसके इस केस में आपका क्या होगा, इसके अंदर आपका कस्टमर को आपको पेमेंट पूरी 50,000 की जाएगी, और रेवेन्यू भी आपका पूरा 50,000 का बुक हो जाएगा। दैट्स इट। बस, और कुछ भी नहीं करोगे। क्या करोगे आप, आउटपुट जीएसटी क्या करोगे आप? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ क्या करोगे बताओ, जब आपका, आप भी रजिस्टर्ड नहीं हो, सामने वाला भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर तो वो किराने की दुकान होगी ना सर। आप 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लाए, 5 रुपए आपने उसको पे कर दिए। अब- नहीं, मैं इस दिस केस में आई हाँ एम रजिस्टर्ड बट द वेंडर इज नॉट हाँ, रजिस्टर्ड। अगर आपका, हाँ इस केस में तो ये हो गया ना सर, आपका वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है। पहले करेक्ट, आप कंट्रोल जेड करो, अभी आप कंट्रोल जेड करो, इसको रहने दो। ये वेंडर इज वाले नॉट रजिस्टर्ड। ये, हाँ, तो इस केस में आपका वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है, बट आपका सप्लायर तो रजिस्टर है ना। यू आई एम रजिस्टर्ड। हाँ, आप रजिस्टर हो, तो आप जब सेल करोगे तो आप तो आउटपुट लोगे ना कस्टमर से और सर्वेंट से। यहाँ पे कस्टमर इज नॉट रजिस्टर्ड। ये मेरे को, ये तो मुझे भी नहीं ध्यान है कि अगर कस्टमर भी आपका नहीं है तो फिर आपका पूरा 50,000 बुक होगा सर आपका, ऐसे ही। ऐसे बोले हो। हाँ, फिर इसमें ये ऐसे ही होगा, इसमें और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मेरा कस्टमर रजिस्टर नहीं है लेकिन मैं रजिस्टर हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो फिर तो आउटपुट का आप तो लोगे ना, गवर्नमेंट से इनपुट। दैट्स व्हाट आई तो एम आप, सेइंग। हाँ नहीं, आरसीएम से नहीं, नॉर्मल वाला आउटपुट जीएसटी बुक होगा फिर वो आप। अच्छा हाँ, आरसीएम का केस, एग्जैक्टली। हाँ आरसीएम का केस उस केस में बुक होता है सर जिसमें आप सर्विस लेते हो। बेचने के टाइम पे नहीं बुक होता कभी भी। करेक्ट, बिकॉज वहाँ पे तो मैं तो रजिस्टर हूँ ही, हाँ, है कि नहीं, और मैं जो कलेक्शन करूंगा कस्टमर से मैं तो पे करूंगा ही। आप तो पे करोगे ही, आपको तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, आप कुछ भी कर लो। तो बट ये अगर केस में आप किसी से परचेज कर रहे हो और वो कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसका भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करोगे। सही बात है। तो हाँ फिर ये वाला केस यहाँ पे एराइज बिल्कुल उठेगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज हाँ, आई एम कुछ भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये मैंने भी हमारा आज तक सिनेरियो देखा बनता नहीं। है। हाँ, ये आपका यही सिनेरियो बनेगा पूरा आपका। और आप परफेक्ट, गूगल पे भी करोगे तो गूगल पे भी यही एंट्री दिखेगी आपको। एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ। सेकंड थिंग, इसका जो हम जो ये टैक्स कोड वगैरह बनाएंगे, राइट, हाँ हाँ, इसका अलग बनेगा, इसका इसका भी अलग अलग बनेगा, बनेगा। बिल्कुल दोनों का अलग बनेगा, क्योंकि दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हमारी मेंटेन करनी पड़ेगी। हम्म टैक्स टाइप इसका अलग एलोकेट होगा, जीएल कोड इसका अलग एलोकेट होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट व्हेन पोस्ट एन एंट्री हम्म, दिस टू विल गेट रिफ्लेक्टेड देयर। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये बिजनेस के जो मैनेजमेंट होता है अपर लेवल का, वो कहता है कि हमें सारी एंट्री आरसीएम की देखनी है कि ऐसे हमारे कितने वेंडर हैं जिससे हम डीलिंग कर रहे हैं बिना जीएसटी का इनपुट लिए। करेक्ट। क्योंकि सर जरूरी नहीं ना कि आपका ये वाला वेंडर जिसका आप 3,000 जमा करा रहे हो और आप इनपुट ले रहे हो, कि आपको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। कोई नया रूल आ जाए, गवर्नमेंट कह दे कि हम तो नहीं देंगे इसका, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपका पूरा 5,000, आपका टोटल फिर 8,000 पे टैक्सेबल हो गया। यस 3,000 तो आपने आरसीएम के केस में पे कर दिया गवर्नमेंट को, 5,000 आपने जो आपने सेल करी उस केस में सप्लायर को दे दिया। यस, तो ये है सर। ब्रिलियंट। इसका वैसे से मैं केस स्टडी बनाता हूँ, हम्म। और फिर सर अपन। एक एक डिस्कशन और करना है, हाँ सर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। ये हम कल करेंगे। ये सिनेरियो मेरे पास कल आया है, मेरा एक कस्टमर है फिक्स जर्मा, हम्म उसने अभी आईएसडी का जीएसटी नंबर लिया है। हम्म तो उस केस में हमें एक बार पुनीत सर से भी डिस्कशन करना है कि इस एसएपी S4 में कैसे चलेगा वो, क्योंकि मैंने ठीक है। बी वन में भी नहीं चलाया वो। हम्म
मेरे किसी भी कस्टमर ने नहीं लिया है, मेरा 12वां कस्टमर है ये, बराबर। जिसने बोला है कि मैंने ISD का GST नंबर अप्लाई करा दी। उस केस में क्या गॉट होगा दैट। कि सर अगर आपकी, मैं तो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ ताकि डिस्कशन हो जाएगी उस टाइम पे। उसमें क्या या होता है कि सर ISD के केस में क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। उस केस में क्या होगा, आप एक HO, आप पुणे में हो, ठीक है सर, आपका हेड ऑफिस पुणे में है, ठीक है सर। अब आपका पुणे में आपका हेड ऑफिस भी है, आपकी एक ब्रांच भी है, और आपकी एक ब्रांच पुणे में है, एक दिल्ली में है, एक यूपी में है, ठीक है सर। बराबर। 3 अलग अलग स्टेट हो गई अब आपकी, और आपका हेड ऑफिस पुणे में है। अब आपने क्या करा कि एक मशीनरी खरीदी पुणे ब्रांच के लिए, बराबर। 1 करोड़ की मशीनरी खरीदी खाली पुणे ब्रांच के लिए, बट वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी ऑल ओवर ब्रांचों के लिए, सबके लिए, ठीक है। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में क्या होता है सर, जो GST का इनपुट मिलता है ना, वो हम खाली सर्विस के केस, सर्विस पे इनपुट ले सकते हैं हम। कैपिटल गुड्स खरीदी है उसका इनपुट नहीं ले सकते हम उस केस में। तो अगर आपने 1 करोड़ की कोई मशीनरी खरीदी है, उसके ऊपर किसी इंजीनियर को बुला के उसकी सर्विस लिया आपने, तो अगर उसने 10 लाख का बिल बनाया उस पे कि भाई मैंने आपकी मशीनरी सेटअप करने में मेरे को 10 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका। अब उसने क्या करा, जो 10 लाख रुपए का बिल बनाया, वो बिल आपका पुणे ब्रांच की बजाय उसने HO के नाम पे बनाया, ठीक है सर। अब जब HO के नाम पे बनाया तो 10 लाख रुपए आगे खड़े हो गए इनपुट HO को। अब HO क्या करेगा, उस 10 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी तीनों ब्रांचों में। ओके। वो तीनों ब्रांचों में किस ब्याह पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेस पे। ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि आपकी पुणे ब्रांच की टर्नओवर लास्ट साल थी 20 लाख रुपए, 30 लाख थी दिल्ली ब्रांच की, और 50 लाख गॉट थी दैट। आपकी, आपकी गॉट दैट। 50 लाख थी यूपी की। तो अब आपका क्या करेगा कि 10 लाख को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख के एवरेज से। सही बात है। प्रोराटा बेसिस पे 2:3, 3:10 हाँ में डिवाइड हाँ। करेगा। तो इस केस में ये भी होता है कि अगर अगर आपकी कोई ब्रांच, जैसे सपोज पुणे की ब्रांच आपने रिसेंटली ब्रांच ओपन की है, हम्म। तो अभी रिसेंटली तो आपकी कोई टर्नओवर होगी ही नहीं। बराबर। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि आपके, अगर आपकी ब्रांच के चलते 3 या 4 महीने हो गए हैं, तो आप लास्ट क्वार्टर का अपना टर्नओवर लेके जाओगे। हम्म। तो मतलब आपका साल का तो टर्नओवर नहीं जाएगा, फिर आप अपने क्वार्टर का टर्नओवर कंसीडर करोगे उस केस में। कंसिडर करोगे उस केस में। हाँ अगर हाँ। अगर नया सेटअप हुआ तो अगर नया सेटअप हुआ तो आपको उस ब्रांच का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा सर उस केस में आपको। हम्म। और इस केस में HO क्या करेगा सर, इस केस में आपकी GSTR 6 फाइल होती है। हम्म। GSTR 6 रिटर्न फाइल होती है आपकी, HO रिटर्न फाइल करेगा GSTR 6। बराबर। और उस केस में 3B में इनपुट कौन लेगा, आपकी पुणे ब्रांच, दिल्ली ब्रांच और यूपी ब्रांच। हम्म। 6 वो रिटर्न फाइल करेगा, वहां से एक इनवॉइस काटेगा। HO ब्रांच आपको 20 लाख का काटेगा, पुणे की ब्रांच को 30 लाख का काटेगा, दिल्ली की ब्रांच को 50 लाख का काटेगा, किसको, यूपी की ब्रांच को। फिर वो हम्म। उसका इनपुट लेंगे हमारी बाकी तीनों ब्रांचें। तो ये पूरा सिनेरियो है, ये मैं समझ रहा था वो बैठ के तो। सही बात है। ये ये आप, पूछेंगे कल। ये कल ये पूछेंगे। पूछना है क्योंकि सर ये अभी रिसेंटली एक कस्टमर के केस में आ गया है, तो मेरे को हाँ। अभी तो B1 में अपना चलाना है मेरे को। अगर मैंने वहां चला लिया तो मुझे सिनेरियो तो समझ में आ ही जाएगा। बराबर।